Okay, so today we'll start with the human body and organ system. So I think last class we'd done cell and cell organelles, na? Thoda time ho gaya, 1 week ho gaya. I hope you all remember it. Kyunki it is important for this continuation type se. Kyunki as you can see, yeah, ye diagram mein, cell is like the basic structural and functional unit of life. Okay, so many cells come together and they form a tissue. Okay, tissue, as you can see, is a group of cells, and now many layers of these tissues together will form an organ, and many organs together will form an organ system, and many organ systems together form a human being. So you as a person will have like many organ systems. Like for example, over here you can see the small intestine. It is a part of the alimentary canal. Okay, other components of alimentary canal are stomach, liver, and large intestine, esophagus, all of that. So all of them together will form an organ system, and these are some examples of organ systems. Digestive, I think you've learned that already. Then respiratory, we'll learn that today. Circulatory system, nervous system, and all, I think you have in later classes. Then excretory system, reproductive system, skeletal, muscular, etc. Okay, so all of these together will form one living person. Okay, so first let's talk about the respiratory system. Respiration, they are of three types ka hota hai respiration: external, internal, and cellular. Okay, now you can see this diagram on the right. External respiration is your normal inhaling, exhaling. You inhale air and it enters your lungs through your nose, and you exhale out the carbon dioxide and unwanted gases. So this exchange is between you and the environment. Okay, environment and your lungs. Okay, so abhi this air which enters once your it enters your nose, so what takes place is the internal respiration. Internal respiration में क्या होता है is you can see this blood and no actually wait, internal ये diagram गलत है. Internal respiration में क्या होता है is your air will enter your lungs. Okay, and lungs में alveoli करके होता है, तो वहां से it gets exchanged into the blood. We'll learn more in detail about that आगे, but that is internal respiration. And cellular respiration is what is shown in this diagram, between the cell and blood का cells. ठीक है, so cell में the blood transports oxygen to the cell, and the cell will give carbon dioxide and all of the unnecessary things to the blood, which again the blood will come and give to the lungs, and then the lungs से it will go out. ठीक है, तो that. And cellular ये जो होता है cellular respiration में we learned about mitochondria, right? Mitochondria is the powerhouse of the cell. So how does mitochondria make energy? It is through this reaction which you can see नीचे. ग्लूकोज अभी हम लोग जो खाते हैं, शुगर वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब में हम लोग को उसके थ्रू एनर्जी मिलता है. तो वील सी हाउ दैट हैपेंस. ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं. ओके, एंड द रिजल्ट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ATP, which is adenosine triphosphate, which is a form of energy. तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से we get about 38 ATP. Okay, so this is how our body gets energy in the form of ATP. So now the entire respiratory system includes nose, as you can see in the diagram, nasal cavity, nose. Then pharynx, which is like the यहाँ पे जो रहता है, it is like the starting point of food pipe and windpipe. दोनों का opening point है, common section types है. So it is like the origin for both of them, and it's pretty big ऐसा size में, you can see over here. ठीक है, then वो pharynx से वो दोनों split होता है, food and windpipe. Windpipe has an epiglottis. ठीक है, My Name is Khan देखा रहेगा तुम लोगों ने, तो उसमें he keeps saying Khan from the epiglottis, तो ये है वो epiglottis. So it is like a covering
जो विंड पाइप को ना बंद करके रखता है, नहीं तो तुम लोग पानी पियोगे तो चला जाएगा ना, ऐसा लंग्स में पानी चला जाएगा, फिर प्रॉब्लम होएगा। कभी कभी जाता है तो देन लोग खांसने लगते हैं, एंड देन पीपल से कि किसी की याद आ गई ऐसे। So that is what epiglottis does is it's normally closed, it's normally open taki the air can go inside, but when you eat or drink something it gets closed so that the food doesn't enter your windpipe. Okay, then windpipe also has your sound box, okay, which is why it's swollen, vocal cord वगैरह है, या your ऐसा Adam's apple also you can feel, ये जो होता है वो, so that is the sound box. Then lungs तो you all know, बहुत स्मोकिंग के एड में देखा रहेगा लंग्स कैसे दिखते हैं। तो लंग्स आर प्रेजेंट इन द thoracic cavity, okay, and they are covered by something called as pleura. They are spongy and एक right lung है, एक left lung है, and this windpipe it enters the lungs on both sides and it will further divide ऐसा branch out, and उसके end में जो है वो alveoli है, ब्रोंकाई करके रहता है, वो ब्रांचेस जो है ना उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, एंड वो उसके टिप में ऐसे एयर सैक जैसा रहता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। एंड नीचे जो दिख रहा है डायफ्राम, दिस एंटायर लंग्स एंड ऑल ऑफ दैट वो डायफ्राम पे रेस्ट कर रहा होता है, ओके। तो बिकॉज डायफ्राम, तुम लोग जब ब्रीथ इन करते हो क्या होता है, डायफ्राम नीचे चला जाता है, तो फिर लंग्स में बहुत जगह बन जाती है, तो एयर एंटर्स द लंग इनसाइड द लंग्स, ओके, एंड व्हेन यू ब्रीथ आउट द डायफ्राम विल कम ऊपर, तो द लंग्स विल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें से जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। सो डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग, ओके। तो अभी दिस इज द इंटरनल exchange that I was talking about, which I said we'll talk about in the future. So yeah, gas exchange inside the lungs. So I said air enters your nose, and what happens is it will travel down through the bronchi and bronchioles, and then it will enter the alveoli, okay. ये जो cloud type ऐसा structure दिख रहा है ना, that is one alveolus, ठीक है। तो क्या होता है is oxygen उधर आता है, एंड एल्वियोलाई के बाजू में ना बहुत ब्लड वेसल्स रहते हैं, ठीक है, एंड उसका लाइनिंग बहुत पतला रहता है। तो वी हैव लर्नड अबाउट डिफ्यूजन बिफोर, राइट? आई टोल्ड यू ऑल इन द लास्ट क्लास डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, एंड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में आ जाता है, तो ऐसे एक्सचेंज होता है। तो आई गिव यू एन एग्जांपल, इट इज इमेजिन एक रेड ब्लड सेल is one rickshaw, okay. So what this rickshaw does is it will transport carbon dioxide to the station, imagine, and it will drop carbon dioxide over there, and it will pick up oxygen, and then it will take oxygen to wherever oxygen का घर जिधर भी है उधर वो जाएगा to different organs, ठीक है। and वो जो रिक्शा का ड्राइवर है वो हेमोग्लोबिन है, okay. Hemoglobin is present in your blood and it forms a compound with carbon dioxide and oxygen दोनों। तो वो बहुत ये है, मतलब उसको ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऐसा। तो ऐसा वो ट्रांसपोर्ट करता रहता है हेमोग्लोबिन। एंड एक नहीं है, एक ही रिक्शा तो नहीं रहता ना, बहुत सारे रिक्शा रहते हैं, तो एक नहीं मिला तो दूसरा मिलेगा, ऐसा। तो बहुत सारे आरबीसीज है, वैसे ही बहुत सारे रिक्शा है। तो दैट इज व्हाट इट डज, हेमोग्लोबिन विल कम एंड पिक अप oxygen from the alveolus and it will drop carbon dioxide, क्योंकि थोड़ा जगह बनना चाहिए ना रिक्शा में बैठने में, तो ऑक्सीजन कैसे बैठेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो पहले उसको उतारेगा वो नीचे, फिर ऑक्सीजन को बिठाएगा, और ऑक्सीजन को और अपने जिधर जाना है, सपोज ऑक्सीजन को स्टमक में जाना है, ठीक है, स्टमक के सेल्स में, तो वो उधर उसको छोड़ के आएगा। एंड वो स्टमक के सेल्स के पास भी बहुत कचरा, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कुछ रहता है। स्टमक के सेल्स वाले हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। तो देन व्हाट दे डू इज दे आर लाइक यू ऑल टेक कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग को ऑक्सीजन दे दो। तो ऑक्सीजन वहां पे उतर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्शा में चढ़ जाता है, एंड देन रिक्शा गोज बैक टू एल्वियोलस, ठीक है। तो दिस इज, एंड वो एज आई सेड द रिक्शा ड्राइवर इज हेमोग्लोबिन। तो अभी पॉल्यूशन एंड ऑल से पता है प्रॉब्लम क्या होता है,
दिस कार का जो एग्जॉस्ट है एंड ऑल दो स्मोक एंड ऑल, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओके, CO. तो नाउ दिस हेमोग्लोबिन इज वेरी स्मार्ट. हेमोग्लोबिन इज इन लव विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उसको इतना नहीं पसंद है, बट CO उसको दिखाना तो वो बोलेगा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. तो एक बार उसने CO को पकड़ लिया तो वो किसी और को भाव ही नहीं देगा. तो देन व्हाट हैपेंस इज वंस हेमोग्लोबिन मीट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, दे गेट मैरिड, एंड देन दैट रिक्शा वाला, दैट हेमोग्लोबिन विल गो ऑन स्ट्राइक. सो हेमोग्लोबिन वोंट वर्क ओनली. तो एक रिक्शा वाला कम हो गया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने. वैसे ही जितने भी CO मॉलिक्यूल्स अंदर आते रहेंगे, वैसे ही उतने रिक्शा वाले स्ट्राइक पे जाते रहेंगे. तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास बाकी. तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है ऑर्गन्स तक, कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रहा है. तो दैट इज द प्रॉब्लम. व्हाट हैपेंस, पोल्यूशन की वजह से डैमेज होता है, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह कम हो जाते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रांसपोर्ट इट, ठीक है. एंड स्मोकिंग, I'll tell you how that affects is ये जो alveoli है ना, alveolar sacs, that gets damaged by smoking. तो okay, you all know what mucus is ना, तुम लोग खांसते हो तो then वो जो निकलता है वो mucus है. एंड वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है. इट इज टू ट्रैप द डर्ट. जो भी डर्ट तुम लोग इनहेल करोगे वो लंग्स तक नहीं जाना चाहिए, इसलिए इट गेट्स ट्रैप्ड इन दैट म्यूकस, एंड देन यू ईदर कॉफ इट आउट और यू swallow it and it will go through your excretory system, it will pass out ऐसा. बट स्मोकिंग में क्या होता है, यू स्मोक दोज पार्टिकल्स इनसाइड, तो the number of kachra or like all this unwanted particles that goes inside your lungs increases. So the number of mucus also increases, like the mucus production is increased and बहुत ज़्यादा हो जाता है mucus. Then you can't breathe normally ना, क्योंकि ऐसा the mucus comes and blocks your full pathways and all, oxygen अंदर नहीं जाता है. तो ऐसा सब प्रॉब्लम होता है स्मोकिंग से. स्मोकिंग मत करो, ठीक है. अभी COVID-19, I'll tell you all how COVID-19 affects your lungs, okay? I'll show you all a video. 1 minute. You all should be able to hear it. ठीक है. I'll play this now. When you breathe, air flows in through your mouth and nose and down your airways. Inside your lungs, the airways end in clusters of air-filled sacs. These air sacs are surrounded by tiny blood vessels. Here, oxygen from your lungs passes into your bloodstream to get to tissues throughout your body. Carbon dioxide is breathed out. COVID-19 is a disease caused by a virus called SARS-CoV-2. The virus infects cells along your airways by attaching to ACE2 and other molecules on those cells. The virus uses ACE2 as a door to get inside of the cells and make more copies of itself. The virus and your immune system's reaction to it, inflammation, damages the air sacs, causing them to scar and stiffen or fill with fluid. This blocks some oxygen from passing from your lungs into your bloodstream. As blood oxygen levels fall, you may feel short of breath. In severe cases, a ventilator or other support may be needed. Inflammation helps our bodies fight infection, but in some people with COVID-19, it seems to go into overdrive. Researchers think this may be due to the fact that the virus latches on to the ACE2 molecule in order to get into cells. Okay, so now you all saw how COVID-19 works. It will affect your lungs and इसलिए people keep checking oxygen level ना, क्योंकि उसमें जैसे वो वीडियो में बोला कि ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है lungs तक. तो then इसलिए ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते रहना चाहिए. अगर कम हो गया तो then हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है. ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया अभी. Let's talk about blood circulatory system. तो blood is a connective tissue, ये तो तुम लोगों को पता ही रहेगा, and it transports various substances like water, hormones, oxygen, soluble nutrients, waste materials. तो blood is
like literally every part, every place in your body there's blood, and that is how all the things are transported. Oxygen, carbon dioxide, kachra वगैरह फेंकना है, everything blood only does. Okay, so now heart is like the pump of your body, right? सबसे मतलब important, मतलब सबसे important नहीं, but काफी काफी important heart ही है. So what it does is it pumps blood, like इतना power है वो heart में, heart के walls में, कि it can pump blood to your full body, like पैर से लेके सर तक. One that pump में it reaches everywhere. Okay, so now heart is also present in that thoracic cavity. वो lungs, दोनों lungs के बीच में, rib cage के बीच में ही है, but थोड़ा left side में. ठीक है, ऐसा left side में heart रहता है ना. And it is the size of your fist. तो तुम लोग का हार्ट अपने ऐसा करोगे तो ये इतना साइज का है तुम लोग का हार्ट. ठीक है, and the weight is ऐसा roughly 360 grams. It is double layered. As I told you, the heart pumps blood to the entire body. तो उसका जो wall है, it should be very thick, right? ऐसा strength होना चाहिए enough. So it is double layered and it's called peritoneal membrane. And दोनों layers के बीच में ना fluid है, क्योंकि ऐसा rub होएगा तो friction होएगा ना. So that is why this fluid is present. अभी ये heart का cross section है, मतलब heart को cut किया तो ऐसा दिखेगा. ओके, काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, बट तुम लोगों को बाय हार्ट करना पड़ेगा वो. सो नाउ द हार्ट इज डिवाइडेड, ऐसा बीच में एक सेक्शन है. बिकॉज ऑफ दैट इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट साइड एंड एक लेफ्ट साइड. इट्स एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ओके, एक मेन बीच में पार्टीशन है, उससे राइट एंड लेफ्ट का पता चलता है. एंड इधर ऐसा करके हॉरिजॉन्टल भी एक पार्टीशन है. तो दैट मेक्स इट लाइक ऊपर वाला जो है वो एट्रियम है, नीचे वाला जो है वो वेंट्रिकल है. ठीक है, एंड वो ये बीच में जो है वो एक प्रॉपर वॉल टाइप है. तो ये दोनों ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ पाइप, ये वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू ही कनेक्टेड है. बट ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला सेक्शन है, दोज टू आर कनेक्टेड थ्रू अ वॉल्व. ओके, वॉल्व क्या होता है? देखो, यू ऑल कैन सी दिस स्ट्रक्चर ना, ऐसा करके है द स्ट्रक्चर. तो दिस मीन्स दैट द ब्लड कैन ओनली फ्लो ऐसे. ओके, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है ना, तो ब्लड ऐसे जाएगा, बट उसको अगर उल्टा जाना है तो वो नहीं जा पाएगा. ओके, बिकॉज वो मतलब इमेजिन यहाँ से ब्लड जा रहा है तो इट विल फ्लो लाइक दिस, बट अगर उल्टा जाना है तो वो ब्लॉक हो जाएगा ऐसा. तो दैट इज व्हाई दैट वॉल्व इज प्रेजेंट, क्योंकि एट्रियम से वेंट्रिकल जाने चलेगा, बट वेंट्रिकल से एट्रियम नहीं जाता है ऐसा. ठीक है, दैट सो एंड दोनों वॉल्व का नाम अलग अलग है. तो आई जस्ट टेल यू ऑल, मतलब ऐसा कुछ शॉर्टकट तो है नहीं याद करने का, बट RT याद रखो, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में ट्राइकास्पिड वॉल्व है. ओके, RT एंड BL. बाइकास्पिड में bicuspid valve is in left ventricle और atrium. तो राइट साइड में tricuspid, लेफ्ट साइड में bicuspid, RTBL. ठीक है, बाकी सब चीजें you can remember. This aorta and all is aorta is like the biggest blood vessel in your body. Okay, जो ऊपर से ऐसे जा रहा है ना, that aorta runs through your entire body and it will branch out into like smaller arteries. ठीक है, तो then there is vena cava also, which is like the biggest vein, सबसे बड़ा वाला वेन जो ब्लड अंदर लाता है. आर्टरीज टेक ब्लड आउटसाइड, वेन्स टेक ब्लड इनसाइड. ठीक है, we'll talk more about the arteries and veins. हाँ, so they are blood vessels. 3 टाइप के होते हैं, arteries, veins and capillaries. ठीक है, तो arteries, as I said, ये जो डायग्राम में है, जो रेड दिख रहा है वो आर्टरीज है, जो ब्लू दिख रहा है वो वेन्स है. ठीक है, एंड आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड. अभी तुम लोग को जो हाथ पे ऐसा सब दिखता है वो वेन्स है, क्योंकि आर्टरीज बहुत अंदर है. बिकॉज आर्टरीज से द ब्लड रीचेज एवरीवेयर. ओके, तो व्हाट हैपेंस इज द हार्ट पंप्स एंड आर्टरीज के थ्रू दैट प्रेशर वाला जो ब्लड है that runs through and it reaches the entire body. But veins में pressure नहीं है. Okay, veins का क्या है,
आर्टरीज में से हार्ट में से जो साफ होके ब्लड, ओके वेट आई टेल यू ऑल व्हाट द हार्ट डज इज बेसिकली द ब्लड कम्स वेन से अंदर, तो दैट ब्लड हैज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड will come enter the heart, then it will leave the heart and go to the lungs. Then the lungs does that gas exchange, carbon dioxide udhar utrega, oxygen udhar chadega, and then again that saaf wala blood will come to the heart, and then heart will send it to like heart will do that pump, and then that blood will reach everywhere in the body, ठीक है. तो how it goes is एक organ से गंदा blood है, मतलब गंदा नहीं है उसमें CO2 है, तो we'll call it ganda blood. Okay, तो ganda blood will come and it will enter the heart. Heart will send it to the lungs. Lungs में साफ हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा उसमें. वो lungs will again send it to the heart, and then the heart will send it to the entire body. ठीक है. तो that is to send it through the entire body, you need a lot of force ना, ऐसा सर तक वगैरह पहुँचने. This is against gravity. तो how will the blood travel? ऐसा अपने आप थोड़ी जाएगा. ऐसा तुम लोग पाइप रखोगे, पानी नीचे रखोगे, अपने आप थोड़ी पानी ऊपर जाएगा, नहीं ना, पंप लगता है उसके लिए. तो हार्ट इज लाइक दैट पंप, इतना प्रेशर देता है वो ब्लड में, इसलिए ब्लड प्रेशर होता है. एनीवे तो वो सब जगह पहुंच पाता है. अभी वेन्स में प्रेशर नहीं है, तो इसलिए वेन्स में वॉल्व है. ओके, वॉल्व मैंने बोला क्या काम करता है. हार्ट में जो था ऐसा वाला वॉल्व, अभी वेन्स में वैसा उल्टा वॉल्व है. तो अभी पैर से, सपोज पैर के सेल से हार्ट तक ब्लड पहुंचाना है, बट पंप तो है नहीं, अभी तो उल्टा जाएगा. तो अब आई मीन ग्रेविटी इज लाइक पुलिंग इट डाउनवर्ड्स ना, बट व्हाट द वॉल्व्स डू इज दे ब्लॉक द वे ऐसा. तो दैट वॉल्व विल बी उल्टा है, इमेजिन. तो ब्लड सिर्फ ऐसे जाएगा, ऐसे जाने को उसको जगह नहीं है. So that is why veins have valves and arteries don't need valves. And arteries are like more thicker, क्योंकि मैंने बोला ना उसमें जो ब्लड जा रहा है वो एकदम प्रेशर से जा रहा है. वेन्स का अगर वेन कट गया तो देन ठीक है ब्लड निकलेगा, बट उतना नहीं. अगर आर्टरी कट गया तो देन ब्लड विल ऐसा एकदम पिचकारी जैसे निकलेगा बाहर, क्योंकि उसमें इतना प्रेशर रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर यू कैन फील योर पल्स ऑल्सो. ये जो पल्स बोलते हैं ना, तो व्हेन यू ऐसा दबाते हैं तो वो जो ऐसे हार्ट बीट जैसा जो रहता है, दैट इज पल्स, एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द बीटिंग ऑफ द हार्ट. वो इतने प्रेशर से जा रहा है कि तुम लोग को पल्स फील हो रहा है. एंड देन देयर इज कैपिलरीज, क्योंकि छोटे छोटे जगह तक पहुंचने यू कैन सी ऐसा नेट जैसा जो बना हुआ है, छोटे छोटे कैपिलरीज रहते हैं. तो आर्टरीज एंड वेन्स बोथ ऑफ देम ब्रांच आउट into capillaries, and then again they meet at like cells and organs. So that is how everything is connected. Okay, so wait, now I wanted to ask you all, do you all have any idea कि blood वो जो लुक डुग करके आवाज आता है ना, धक धक बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो वो किस वजह से आता है? Any ideas? अच्छा, you all are not actually you all are not supposed to answer, तो ठीक है मैं ही बता देती हूँ. ये जो वॉल्व है ना, उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग का आवाज इज दैट धक धक. एंड 2 बार क्यों होता है? क्योंकि एक बार ट्राइकास्पिड वॉल्व बंद होता है, फिर दूसरी बार बाइकास्पिड वॉल्व बंद होता है. पहले राइट वाले में ब्लड जाता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वाले में जाता है. नहीं उल्टा है, सॉरी. लेफ्ट वाले में आता है अंदर, फिर राइट वाले से बाहर जाता है. तो देन पहले इज एक बार एक वो वॉल्व खुलता है बंद होता है, एंड उसके एकदम मिली सेकेंड लेटर दूसरा वाला खुलता है बंद होता है, इसलिए वो धक धक ऐसे सुनता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लड. ब्लड, आई सेड इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एंड blood is red in color because I told you वो जो हम लोग का रिक्शा ड्राइवर है, hemoglobin, it is very rich in iron and that is why it's red in color. Hemoglobin is red in color, that is why blood is red in color. And hemoglobin is is our body का रिक्शा driver, but in animals like octopus they have hemocyanin करके, ठीक है. तो हेमोसाइनिन का कलर, हेमोसाइनिन डज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन एन ऑक्टोपस. तो ऑक्टोपस का ना ब्लड ब्लू कलर का होता है बिकॉज हेमोसाइनिन इज ब्लू इन कलर, ठीक है.
And now blood has all of these components. Besides red blood cells, it has plasma. So plasma is like this pale yellow colored fluid. You all can see in this picture. ये जो picture में क्या हुआ है is the blood has separated. वो red blood cells सब नीचे हैं and ऊपर जो clear liquid है that is plasma. It has salts and water and proteins and all of that जो blood में रहता है. ठीक है? Then there is albumin, which is also a part of the blood. Then there are fibrinogens, prothrombin, globulins helps in defense mechanism, मतलब immune system का वगैरह सब things are in the globulins. Then there is calcium, sodium, all these nutrients and all are present. ठीक है? So now let's talk about the जो ये नीचे वाले part में जो भी accumulate हुआ है, they are of these types. ठीक है? Red blood cells होते हैं, white blood cells होते हैं and platelets. ठीक है? Red blood cells also known as erythrocytes. वो सेल में ना न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसा होल टाइप्स रहता है. एंड न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? बिकॉज द हेमोग्लोबिन कैन देन बॉन्ड फॉर्म अ बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट. ऐसा न्यूक्लियस रहेगा तो रिक्शा में ज्यादा जगह नहीं रहेगी, तो रिक्शा को ऐसा पैसेंजर बैठने के लिए जगह होना चाहिए, इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है? सो दैट हेल्प्स इन CO2 and O2 exchange. फिर there are white blood cells which are very important for your immune system. तो white blood cells के भी types होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. न्यूट्रोफिल मतलब उसका ना स्टेन या तो वो न्यूट्रल स्टेन लेता है, एंड इओसिनोफिल इज एसिडिक, टेक्स एन एसिडिक स्टेन. बेसोफिल टेक्स बेसिक स्टेन. ठीक है? इसलिए उसका नाम वैसा है. Then there are lymphocytes and monocytes. These ऐसा infection वगैरह होता है ना, तो ये इसका नंबर बढ़ जाता है because they fight the infection. Okay. Then there are platelets which are known as thrombocytes. तो what platelets do is अभी हाथ कटवट गया तो then full time तो blood बहते नहीं रहता है ना, थोड़ी देर बाद clot हो जाता है blood, ऐसा कड़क कड़क हो जाता है ना. तो this platelets help उसमें. प्लेटलेट्स कम एंड उधर वो लोग जमा हो जाते हैं एंड देन दे मेक श्योर और ब्लड नहीं बहे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, वो नहीं होता तो ऐसा फुल बॉडी का ब्लड बह जाता, तुम लोग मर जाते. ऐसा एक डिसीज है हेमोफीलिया करके, उसमें प्लेटलेट्स का लाइक क्लॉटिंग फैक्टर करके एक हार्मोन है, वो नहीं होता है, तो उसकी वजह से कुछ कटवट गया तो देन अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस होता है, तो देन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें. ठीक है? So the functions of blood are transport of gases, as we learned, वो CO2, O2, rickshaw service उसका. ठीक है? Transport of nutrients also. I told you all proteins and carbohydrates and all. It goes to you all must have learned the digestive system. तो तुम लोगों को पता है digestive system में जो small intestine है वहां से absorption होता है. तो small intestine के wall पे लाइनिंग विलाई करके ऐसा ऐसा छोटा छोटा ये होता है, एंड वहां पे ब्लड वेसल्स जाते हैं एंड all these nutrients and all, it will absorb from there and it takes it to the cells and all. So that's how transport of nutrients happens. Transport of waste material, it happens from the kidney. वो नेफ्रॉन करके उसमें यूरिया वगैरह it will go to the kidney and collect from the this thing, and then वो सब यूरिन से निकल जाता है. It will go and give it to the kidney. Like जो cell will give it, I told you, cell जब blood goes to the cell, it will give it कचरा. Along with carbon dioxide, it will be like ये भी लेके जा, ये भी नहीं चाहिए हम लोग को. So all of that urea and all of that कचरा, it will go and it will give it to the kidneys, and वहाँ पे से it will be excreted. ठीक है? Then protection. तुम लोग का antibodies वगैरह जो immunity चाहिए ना, all of that is also in the blood. It's present in the blood. Serum करके होता है, उसमें it's present. I'll tell you all more about it. Then enzymes and hormones का भी transport, सब कुछ, सब जो भी किधर भी पहुंचाना है, blood सब काम करेगा. Okay. Thermoregulation, it maintains the temperature. Warm blooded बोलते हैं ना हम लोग को, बाहर के साथ temperature change नहीं होता हम लोग का. So then, and again, seals injury. I told you all platelets do that. So now I told you all about protection. How this works is antibodies करके
सी इन दिस डायग्राम, ये जो ऐसा बाय शेप्ड मॉलिक्यूल है ना, वो एंटीबॉडी है. ओके, तो एंटीबॉडी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो बी सेल करके है, वो प्रोड्यूस करते हैं. तो कुछ भी बाहर का आएगा ना, ऐसा कोविड वगैरह अंदर आएगा, तो देन एंटीबॉडीज विल गो एंड फाइट इट. ओके, वो लोग झगड़ा करते हैं, दे आर लाइक द डिफेंडर्स ऑफ आवर बॉडी. तो देन antibodies are also called as immunoglobulins, and they are Y-shaped. They fight antigens. अभी antigens क्या है? जो भी बाहर का आता है ना, जो भी foreign unrecognized substance, all this virus, bacteria, everything, that is called an antigen. So antigen is basically something that your body doesn't recognize. Your body, like imagine something which is your body has never seen. अब कोई नया पर्सन आ गया तो देन योर बॉडी इज लाइक अरे ये कौन है, इसको पहले कभी नहीं देखा है, ये कोई प्रॉब्लम खड़ा करेगा तो हम उसको बाहर निकाल देंगे. ओके, सो दैट इज व्हाई एंटीजेंस के व्हेनेवर दीज एंटीजेंस एंटर योर बॉडी, इम्यून रिएक्शन होता है. सो इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं उसको. सो दे ट्रिगर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन. इट्स लाइक ऐसा कोई स्ट्रेंजर दिख गया कि अरे ये कौन आ गया, एंटीबॉडीज को बुलाओ, इसको बाहर निकालना है, ऐसा. ठीक है. So antigen and antibody, they together they form a reaction and it's called agglutination. So so antigen is very हम लोग की बॉडी में बहुत टाइप के एंटीबॉडीज है. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज कोविड एंटर्स योर बॉडी, तो उसके लिए सपोज लास्ट ईयर तुम लोग को चिकन पॉक्स हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए भी एंटीबॉडीज बनाए थे तुम लोग के बॉडी ने. ओके, थोड़े हैं, बट अभी कोविड आएगा तो दोज एंटीबॉडीज वोंट वर्क, क्योंकि ये ऐसा लॉक एंड की मैकेनिज्म रहता है. सपोज दिस एंटीजन इज ऐसा स्क्वायर शेप्ड, तो वो एंटीबॉडी जो है वो एकदम ऐसा उसके ही शेप का होएगा ऐसा. तो कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक. And जब वो हुआ वैसा, तो then that happens, this agglutination happens. They just clump together and वो reaction होता है दोनों में. So now we'll talk about blood groups. सबको I don't know, तुम लोग के blood groups क्या है? Comments में बोलो, chat में बोलो क्या है. तुम, मेरा O positive है. I'll tell you all how blood groups works. Okay. So imagine this is a blood cell. Okay. तो ये जो blood है, इसके ऊपर ना प्रोटीन्स रहते हैं थोड़े. तो we'll call them, there are two types of proteins present on the blood. One is, we'll call one protein we'll call antigen A. And now I'll tell you all why we are calling it antigen also. Okay. So थोड़े blood cells में antigen A present होता है, थोड़े इसमें antigen B होता है, थोड़े लोग के blood cells में दोनों होते हैं, A और B दोनों होते हैं, एंड थोड़े लोगों के इसमें एंटीजन होता ही नहीं है. ओके, सो नाउ सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है. ओके, सपोज आई एम ए पॉजिटिव, नेगेटिव मैं तुम लोग को बाद में बोलती हूँ, बट पहले सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है. तो मेरे जो ब्लड सेल्स हैं उसके ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो है ए वाला प्रोटीन प्रेजेंट है. ठीक है, तो एंटीजन ए मेरे ब्लड सेल पे प्रेजेंट है एंड एंटीजन बी मेरे बॉडी में है ही नहीं. ठीक है, तो माय बॉडी डजंट नो व्हाट एंटीजन बी इज, पहले कभी सुना भी नहीं है, नाम भी नहीं देखा है. ओके, तो व्हाट हैपेंस इज, अगर कोई बी वाला बी ब्लड का ग्रुप का ब्लड मेरे बॉडी में आ गया, उनके ब्लड सेल पे बी है ना, बी एंटीजन, तो अगर वो मेरे बॉडी में आ गया, मेरे बॉडी ने कभी बी को देखा ही नहीं है, तो देन वो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देगा, वो बोलेगा अरे ये क्या है, इसको बाहर निकालो एंड ऑल, तो झगड़ा चालू हो जाएगा एंड ग्लूटिनेशन हो जाएगा. तो दैट इज व्हाई, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. एंड बी में सेम, अगर बी वाले को ए का ब्लड दे दिया तो उसका भी बॉडी बोलेगा अरे ये क्या है, ये क्या आ गया, पहले कभी देखा नहीं है इसको, तो वो एंटीबॉडीज ए के अगेंस्ट बना देगा. और वैसे इसलिए एक दूसरे को ब्लड नहीं चलता है देने. ओके, एंड ए बी में क्या है, दोनों है ऊपर. एक मतलब सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो देन ए वाला एंटीजन भी है और बी वाला भी है. तो माय ब्लड नोज एवरीवन, ए भी पता है उसको, बी भी पता है, तो कोई भी ब्लड दे दो, ए बी दे दो, ए ग्रुप दे दो चलेगा, बी दे दो तो भी चलेगा. इसलिए ए बी को ना यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं. ओके,
तो उसको कोई भी ब्लड ग्रुप दे दो, उसके लिए कुछ नया नहीं है, इसको देखा है पहले से, ठीक है। बट ओ पॉजिटिव में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ में ए कोई प्रोटीन ही नहीं रहता है ऊपर, ए भी नहीं रहता है, बी भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए एंड तो ए का भी ब्लड, इफ यू गिव एन ओ पेशेंट ए का ब्लड या बी का ब्लड या तो ए बी तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, क्योंकि वो किसको पहचानता ही नहीं है, उसके पास ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई ओ इज यूनिवर्सल डोनर। तो अगर ओ का ब्लड आई गिव इट टू ए वाला पर्सन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ब्लड के ऊपर कोई प्रोटीन ही नहीं है, तो ऐसा कुछ फॉरेन है नहीं। सो दैट इट्स लाइक दैट, ओके। एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, रीसस मंकी करके है वो, उसमें पहली बार मिला था वो उन लोग को। सो आर एच पॉजिटिव इज मतलब वो जो ब्लड सेल है उसके ऊपर द आर एच प्रोटीन इज प्रेजेंट, एंड नेगेटिव मतलब नहीं प्रेजेंट। तो इसलिए दैट इज हाउ इट्स bifurcated. Positive, I am O positive, matlab my blood has the RH protein and it doesn't have any other protein, okay. If someone is AB positive, matlab it has A protein, B protein and the RH protein, okay. And suppose A negative hai to matlab it has only the A protein and RH nahi hai, okay. So that is how it works. So suppose मैं ए नेगेटिव हूँ एंड कोई मेरे को ए पॉजिटिव ब्लड देगा तो भी नहीं चलेगा, इवन दो इट्स ए, मेरे पास वो आर एच प्रोटीन नहीं है पहले से, so then that won't be allowed, and again that will also cause an immune response, ठीक है। so it's called ABO incompatibility। इसलिए ब्लड अगर किसी को if you donate blood and कोई पेशेंट को देना है तो एकदम चेक करके देना पड़ता है कि ब्लड ग्रुप सेम मैच होना चाहिए, एंड अगर नहीं हो तो ओ पॉजिटिव वाले लोग किसी को भी दे सकते हैं, ओके। नाउ आई विल टेल यू ऑल व्हाई। सो नो इट, ओके। O blood group I told you all is universal donor, right? So any guesses whether O positive should be universal donor or O negative? I'll check your charts. Any guesses? Should O positive be universal donor or O negative? O negative. और कोई नहीं ना, ठीक है। Yes, O negative is the right answer. O negative should be the universal donor because O negative has no antigens present on the cell. और A भी नहीं है, B भी नहीं है and RH भी नहीं है, तो वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। And universal receiver should be AB positive, क्योंकि AB पॉजिटिव के पास जितने भी प्रोटीन, जितने भी एंटीजेंस ब्लड ग्रुप्स में मिलते हैं वो सब है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है एंड RH भी है, तो AB पॉजिटिव वाले लोगों को कोई भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो वो एंड एक और है बॉम्बे ब्लड ग्रुप करके, वो एकदम एकदम रेयर है। वो जो ब्लड ग्रुप है उन लोग को अगर ब्लड डोनेट करना है तो देन बहुत मुश्किल से मिलता है उन लोग को ब्लड, तो दैट बॉम्बे ब्लड ग्रुप करके बोलते हैं उसको, एंड दे डोंट हैव एनी एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सेल, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस करके, हेमोलिटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न भी बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, सपोज द मदर इज ए नेगेटिव, ठीक है, इमेजिन A negative है and now she is pregnant with a kid who is A positive। तो अभी क्या होता है ये मैंने बोला कि पॉजिटिव ब्लड अगर नेगेटिव वालों में चला जाएगा तो देन इट विल कॉज एन इम्यून रिस्पॉन्स, तो दीज एंटीबॉडीज विल गो एंड अटैक दैट ब्लड। तो फर्स्ट बेबी को कुछ नहीं होता है क्योंकि एक्चुअली देयर इज नो
exchange of blood between the mother and the child during जब pregnancy में कोई blood exchange नहीं होता है. But then the next kid, अभी क्या हो गया is अभी बॉडी को पता है कि ये जो RH करके है कुछ तो है, वो अच्छा नहीं है क्योंकि वो हमारे पास नहीं है. ओके, तो नाउ इफ द नेक्स्ट किड इज ऑल्सो ए पॉजिटिव, तो the mother's body will cause an immune response and kill that child. मतलब पेट में ही वो बच्चा मर जाता है क्योंकि ये मॉम की जो है, मॉम के एंटीबॉडीज वो उसको अटैक कर लेते हैं क्योंकि वो ए पॉजिटिव है और मॉम ए नेगेटिव है, तो उसमें RH प्रोटीन प्रेजेंट है. ओके, तो दैट इज वन interesting disease. And okay, now blood pressure. So I told you all why the pressure exists. It's because your heart pumps with like such force कि वो arteries में ऐसे full pressure से जाता है ताकि वो सब जगह पहुंचे. तो blood pressure is very important क्योंकि वो सब जगह blood पहुंचाता है. And it happens because of the contraction and relaxation of the heart. And तो दो टाइप का प्रेशर होता है. जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना हार्ट, वो जो प्रेशर देता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर. और जब हार्ट रिलैक्स होता है, मतलब ऐसा बंद करके ऐसे वापस ओपन अप होता है, तो वो जो प्रेशर मेजर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है. तो द नॉर्मल मेजरमेंट्स ये टेबल में तुम लोग देख सकते हो. नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड बी अबाउट 120 systolic, and diastolic should be थोड़ा 80 के आसपास ऐसा. एंड उससे ज्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको, हाई ब्लड प्रेशर. तुम लोग ऐसा अपने पेरेंट्स को ट्रबल करते हो तो उन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर होता रहेगा. तो हाइपरटेंशन, उसके अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, जितना बढ़ता जाता है उतना प्रॉब्लमेटिक होता जाता है. एंड ठीक है, और कोई क्वेश्चंस है ब्लड या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में? Any questions? No? Okay, cool. ठीक है, next time then we'll meet next week. ठीक है? Okay, bye. I'll end the meeting now.